Welcome to all of you in this YouTube channel of T-Cube GATE classes, in which we are providing free lectures for the GATE preparation of electrical engineering students. So let's start with the second lecture of electromagnetic theory. In this lecture, we will see the very important law which is known as Gauss law, and then we will see Poisson and Laplace equation. Poisson's equation and Laplace equation. Now, the very important aspect is what is Gauss law? According to the Gauss law, the charge inside the body is equals to the flux passing through the surface of the body. Charge enclosed by the body is equals to the flux crossing through the surface of the body. Suppose we are talking about a particular cylinder like this, and it is having, suppose, charge Q. Suppose we are having this cylinder and the charge inside this particular cylinder is Q, then I can define this particular charge in various manner through line charge density, surface charge density, volume charge density. According to the line charge density, charge per unit length dq by dl, limit dl tends to 0. This is the definition of line charge density. Line charge density. If we are talking about the surface charge density, it is represented by rho s, and this is represented by dq by ds, limit ds tends to 0. This is called surface charge density. Surface charge density. Charge can be on the line, it can be on the surface, it can be over the volume. So volume charge density, limit dV tends to 0, dq by dV. This is known as volume charge density. Okay, this is volume charge density. तो चार्ज बेसिकली जहां भी होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, द वन वर्ड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज. चार्ज जहां भी होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म. वेदर इट इज थ्रू द लाइन और whether it is through the surface or it is through the volume, but the distribution is always uniform. Then only we can define line charge density, surface charge density, or volume charge density. Now, with the help of these definition, I can write dq is equals to rho l dl. I can also write dq is equals to rho s ds, and I can also write dq is equals to rho v dv. Then after integral, I can determine the entire charge over the length, over the surface, or through the volume. Means either I can do the line integral of the line charge density, or I can do the surface integral of the surface charge density, or I can do the volume integral of the volume charge density in order to calculate the total accumulated charge. Accumulated charge. So this we can do. Okay. Now, how can I define the flux with the help of flux density? Electric flux density vector D is defined as flux per unit area, means d psi over ds, limit ds tends to 0. मतलब जब फ्लक्स जो है वो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जो कि एक वेक्टर होता है, वेक्टर डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं डी साई इज इक्वल्स टू डी डॉट डी एस
और निश्चित तौर पे यहाँ पे हमें क्लोज सरफेस इंटीग्रल करना है। क्लोज सरफेस इंटीग्रल जब हम डी साई का करेंगे तो हमें मिलेगा साई, और ये बराबर हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस। अब इसको यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दूं, तो आप देखिए इक्वेशन 1 से हमें चार्ज मिल रहा है, इक्वेशन 2 से हमें फ्लक्स मिल रहा है, और गॉस लॉ के मुताबिक चार्ज ही फ्लक्स है, जैसा कि हम जानते हैं चार्ज ही फ्लक्स है या फ्लक्स ही चार्ज है। तो साई को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ साई व्हाट आई कैन राइट इंटीग्रल ओवर डी डॉट डी एस, integral over d dot ds, and this can also be written as integral rho v dv. The closed surface integral of electric flux density is the volume integral of the volume charge density. Let's say this is equation number 3, which is another very important equation. I hope it is clear to all of you. Then we will talk about a very important theorem which is known as divergence theorem. डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है, डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कोई यदि वेक्टर हमारे पास ए है तो उस वेक्टर का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल उसी वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज नथिंग बट द इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द सेम वेक्टर। कोई भी वेक्टर हो सकता है ये, ठीक है। आई कैन मेंशन ओवर हियर ए इज अ जनरल वेक्टर, okay. So here if we take instead of a, if I am taking vector d which is none other than electric flux density vector, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, d dot ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रल is equals to volume integral of del dot d dv. I can write this. Let's say this is equation number 4 because in the last slide we have seen the equation number 3. So equation number 3 भी मेरे पास है। इक्वेशन नंबर 3 से हमने क्या कहा, d डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल इट इज इक्वल्स टू रो वी डी वी का वॉल्यूम इंटीग्रल। दिस वाज इक्वेशन नंबर 3. नाउ यू कैन सी इक्वेशन नंबर 3 इज आल्सो d डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रल, मतलब कि फ्लक्स की डेफिनेशन है। इक्वेशन नंबर 4 is also d dot ds का closed surface integral, मतलब again it is the definition of flux. So with the help of equation 3 and equation 4 I can equate these two equation and I can say that integral del dot d dv is equals to integral rho v dv, और दोनों तरफ से वॉल्यूम इंटीग्रल को ओमिट कर दिया तो हमारे पास आता है del dot d is equals to rho v, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गई हमारे पास ये। और इस इक्वेशन का क्या नाम है, इसे कहा जाता है पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ या पॉइंट फॉर्म ऑफ फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। दिस इज पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। आई कैन राइट पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, प्रोबेबली लेक्चर नंबर 8 और 9, लेकिन अभी चूंकि ये डिराइव कर लिया तो हम इसको इस नाम से जान लें, समझ लें और याद भी रखें कि डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं ना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। डेफिनेशन क्या देंगे आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, divergence of the electric flux density is nothing but the volume charge density. You can give this particular definition, ठीक है। अब आइए हम इस रिलेशन को लेके आगे चलते हैं। अभी हमारे पास आ गया है डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया, जो कि एक मैक्सवेल इक्वेशन भी है, पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी है, या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी है, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पूछा जाए तो क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर में 5 तो हो गया, मैं इसको 3a नाम दे देता हूँ, ठीक है, या 4a, ठीक है, क्योंकि 4 तक हो गई थी इक्वेशन। सो आई शुड से दिस इज 4a। दिस इज इक्वेशन नंबर 4a, ठीक है। तो ये जो 4a इक्वेशन लिखी है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डेल डॉट डी
dv इज इक्वल्स टू रो वी dv। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्या है हमारी, इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहा जाएगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, अब आप कहें डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या अंतर, दोनों एक ही है? नहीं, डाइवर्जेंस थ्योरम इज अ थ्योरम which can be implemented on any vector, general vector A, but when I am talking about Gauss divergence theorem, it means I am implementing divergence theorem on electric flux density vector capital D only. That's why it is called a divergence theorem. Okay, Gauss divergence theorem. Okay, और d dot ds is equals to rho v dv, d डॉट डी एस इज इक्वल्स टू रो वी डी वी, ये तो अभी हमने यहाँ से लिखा था, d डॉट डी एस इज इक्वल्स टू रो वी डी वी। इसको भी आप इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ कह सकते हैं। ठीक है, 3 और 4 ए दोनों को। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है, पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन। अब इस मैक्सवेल इक्वेशन को लेके हम आगे चलते हैं। तो आप देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर D जो है, this is basically equal to epsilon E. Now what is D? D is the electric flux density vector and what is E? E is the electric field intensity vector. ठीक है, तो वेक्टर D is equals to epsilon E। अब epsilon यहाँ पे क्या है, D यदि एक वेक्टर है, E यदि एक वेक्टर है, तो epsilon क्या है? तो वैसे तो लोग समझते हैं कि epsilon स्केलर है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि epsilon ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, epsilon इज अ टेंसर। ठीक है, टेंसर जो होते हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, मींस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब आप बोलेंगे तो सारे एक से लग रहे हैं, सारे एक से नहीं है। दिस इज एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, ठीक है, देन वाई एक्स, वाई वाई, वाई जेड, देन जेड एक्स, जेड वाई, जेड जेड। ये कहलाता है एप्सिलॉन इज अ टेंसर। ठीक है, तो याद रखिए, स्केलर और वेक्टर के अलावा भी एक दुनिया है जिसका नाम है टेंसर। तो वेक्टर डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, देन डेल डॉट आई कैन राइट एप्सिलॉन ई is equals to rho v. Then what I can write, del dot capital E, it is nothing but rho v by epsilon. This is another very important equation and popularly known as, again, point form or differential form of Gauss law. Point or differential form of Gauss law. Okay, so this is known as point form or differential form of the Gauss law. Del dot E is equals to rho v by epsilon. Let's say this is equation number 6, which is very important. Okay, so now we are having del dot E is equals to rho v by epsilon. Now how can I define the electric field intensity vector E? E can be defined as minus of delta V. ठीक है, what is V? V is the potential, E is the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आई कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, कि वोल्टेज जिस डायरेक्शन में बढ़ता है उस डायरेक्शन में फील्ड हमारी कम होती चली जाती है, और वोल्टेज जिस डायरेक्शन में हमारा कम होता है उस डायरेक्शन में हमारी फील्ड बढ़ती है। मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ही फील्ड नहीं है, बल्कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल का डेरिवेटिव। ठीक है, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल जेड। एक्चुअली हम डेल ऑपरेटर को देखेंगे ना, तो डेल ऑपरेटर का मतलब क्या है, डेल बाय डेल एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स, आई एम राइटिंग इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल बाय डेल वाई यूनिट वेक्टर ए वाई, then I can write del by del z unit vector az. Okay, this is the definition of del operator. और del operator एक ऐसा ऑपरेटर है जिससे हम कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, whether it is divergence और gradient और कर्ल और लाप्लासियन, सारे ऑपरेशन इस डेल ऑपरेटर से परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल का डेरिवेटिव, और पोटेंशियल का डेरिवेटिव मतलब पोटेंशियल का चेंज होना, और नेगेटिव साइन मतलब जो चेंज होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ आई वांट टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E, व्हाट आई कैन राइट, V इज अ स्केलर, वोल्टेज स्केलर है, और फील्ड क्या है हमारी, वेक्टर। सो व्हाट आई कैन राइट, ये जो डेल की डेफिनेशन इसको एज इट इज लेंगे,
और v स्केलर है तो सबके साथ आ जाएगा, और माइनस साइन आगे है तो आई कैन राइट डेल v बाय डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल v बाय डेल वाई ए वाई कैप प्लस del v by del z a z cap. Okay. Now this is the definition of electric field, which is again a very important relation for us. Let's say this is equation number 7. ठीक है, तो इस तरह से हमने गॉस लॉ देखा, गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म देखा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखा, जनरल डाइवर्जेंस थ्योरम देखा, गॉस लॉ का पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म देखा, फिर d बराबर एप्सिलॉन ई उसमें सब्स्टिट्यूट किया, फिर अनदर फॉर्म डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो वी बाय एप्सिलॉन व्हिच इज द पॉइंट और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे की डेफिनेशन देखिए। अभी हमारे पास आ चुका है del dot E is equals to rho v by epsilon. Okay, we have del dot E is equals to rho v by epsilon. But what definition of E we get? We get the definition of E is equals to minus of del v. Okay, this was equation number 6 and this is 7. Let's say this is 6a. ठीक है, तो 6 and 6a की मदद मैं ले रहा हूँ। This was equation number 6 and this was equation number 6a. इन दोनों को अगर हमने लिखा और क्लब किया तो डेल डॉट माइनस ऑफ डेल वी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, रो वी बाय एप्सिलॉन। देन आई कैन राइट हियर, माइनस साइन को मैं राइट में ले जाता हूं, तो डेल डॉट डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस रो वी बाय एप्सिलॉन, एंड आई कैन राइट del square v is equals to minus rho v by epsilon, which is another very important equation. ठीक है, एंड दिस इज लेट्स से इक्वेशन नंबर 7 भी हो चुका था क्या हमारे पास, हाँ, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड पॉइसन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड पॉइसन्स इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो पॉइसन इक्वेशन है बेसिकली ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डेल स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए डेल की डेफिनेशन अभी आपने देखी, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड। अगर मैं उसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो आई शुड राइट सिग्मा डेल बाय डेल एक्स ए एक्स कैप। इफ आई एम राइटिंग दिस व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, सिग्मा लगा दिया, सफिशिएंट है। इफ आई एम सेइंग डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर बना कैसे है, डेल स्क्वायर बना है डेल डॉट डेल से, और डेल की डेफिनेशन क्या है, सिग्मा डेल बाय डेल एक्स ए एक्स। तो इसको मैं यदि लिखता हूं तो क्या होगा, सिग्मा डेल बाय डेल एक्स ए एक्स कैप इन अ ब्रैकेट, इन द अनदर ब्रैकेट सिग्मा डेल बाय डेल एक्स ए एक्स कैप। ओके, तो अब आप देखेंगे जब हम इसका विस्तार करेंगे, एक्सपांशन करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, अगेन डॉट, दोनों के बीच में क्या लगा है, डॉट प्रोडक्ट, और फिर डेल बाय डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ए जेड, एंड वी नो द रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ए एक्स डॉट ए एक्स, ए वाई डॉट ए वाई, ए जेड डॉट ए जेड, ऑल आर वन, just like I dot I equal to J dot J equal to K dot K is equals to 1. So what we will get basically, we will get del square is equals to del 2 by del x square plus del 2 by del y square plus del 2 by del z square, and no unit vector will be there. Why? Because ax dot ax will become 1, ay dot ay will also become 1, az dot az will also become 1. So if I want to express this, how can I write this, del square v, तो v से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, and this product is neither a dot product nor a cross product, it is a simple algebraic product. Why? Because this is a scalar quantity now and v is also scalar. ठीक है, तो एक वेक्टर और वेक्टर के बीच में डॉट हो सकता है, वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्रॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ सिंपल एल्जेब्रिक प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों स्केलर क्वांटिटी के बीच में, तो व्हाट आई विल गेट del 2v बाय del x स्क्वायर प्लस del 2v बाय del y स्क्वायर प्लस del 2v बाय del z स्क्वायर is equals to what, is equals to minus rho v by epsilon. This is the expansion of very important Poisson equation. Again I am writing equation number 8, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है,
बस हमने डेल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका एक्सपांशन कर दिया। ठीक है, अब ये पॉइजन इक्वेशन हमारे पास आ गई है। पॉइजन इक्वेशन से हम लाप्लास इक्वेशन की तरफ कैसे बढ़ते हैं, बिल्कुल एक स्टेप का है ये। डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है, माइनस रो वी बाय एप्सिलॉन। अब क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि हमारे पास जो रीजन होगा उसमें हमेशा चार्ज हो? ऐसा तो जरूरी नहीं है। समटाइम्स रीजन कैन बी चार्ज फ्री, समटाइम्स इट कैन हैव सम चार्ज। सो व्हेन द रीजन इज चार्ज फ्री, इफ region is charge free, रीजन में कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसी अवस्था में लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसी की भी बात करना बेकार है, क्योंकि सिस्टम में कोई चार्ज ही नहीं है। तो इसलिए चूंकि वहां पे कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पे लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तीनों का ही कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो रो भी इस प्रकार से जीरो हो गया। दिस इक्वेशन वाज नंबर 8। ओके, सो रो वी को मैं जीरो कर दूं तो व्हाट आई विल गेट डेल स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 9 एंड इट इज वेरी पॉपुलरली नोन एज लैपलास इक्वेशन। ठीक है, और ये जो डेल स्क्वायर वी है, ये जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर का नाम ही डेल स्क्वायर ऑपरेटर, ये इसका नाम क्या है, इस डेल स्क्वायर का नाम है लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, जिस तरह डेल ऑपरेटर को हम क्या नाम देंगे, डेल ऑपरेटर को आई कैन गिव द नेम पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और लैप्लासियन एक ऑपरेटर कैसा हो गया, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर मिल रहा है, और पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा कैसा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, so normal partial differential operator is a first order differential operator, but Laplacian operator is a second order differential operator. Okay, so del square v is equals to 0. We have the equation del square v को कैसे expand करते हैं अभी हमने देखा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, I can write del 2v by del x square plus del 2v by del y square plus del 2v by del z square is equals to 0। इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गई which is known as Laplace equation. Let's say this is equation number 10। हालांकि 9 ही है, हमने डेल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो ये लाप्लास इक्वेशन आ गया, और अब हम इस लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि ये देखिए थ्री डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पार्शियल differential equation, this is a three dimensional partial differential equation। तो एक तो तीन डायमेंशन है, तीनों के सेकंड डेरिवेटिव यहां मौजूद है, हाँ सेकंड ऑर्डर भी है। थ्री डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, दिस इज अ थ्री डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर की नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हो तो वो एक वेरिएबल की होती है, जैसे d2 y by dx स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तो सेकंड ऑर्डर भी है और थ्री डायमेंशनल भी है, सो वन कैन इजिली थिंक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, बिकॉज वोल्टेज इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू z ऑल्सो, एंड दैट टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल। ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इक्वेशन इज वेरी मच, दैट्स वाई जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, लाप्लास इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू वन डायमेंशन, सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशन। तो नॉर्मली जो आपके सिलेबस में, गेट के सिलेबस में है, सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन इन वन डायमेंशन, और वो कैसे सॉल्व करते हैं उस पर न्यूमेरिकल है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आइए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद दिस पॉइजन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, और सबसे पहले गॉस लॉ। ओके, सो गॉस लॉ में हमने क्या देखा, चार्ज फ्लक्स के इक्वल है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन प्रकार से समझाया जा सकता है, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और फिर हम उनका इंटीग्रल करके either by the line integral of the line charge density or by the surface integral of the surface charge density or by the volume integral of the volume charge density we can determine the charge।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। और फिर हमने देखा कि चार्ज जो कि फ्लक्स के बराबर है, तो डी डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज आल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिस वाज इक्वेशन नंबर 3. देन वी हैव सीन द डाइवर्जेंस थ्योरम for any vector, general vector A, closed surface integral of the vector is also equal to the volume integral of the divergence of the vector. This is the divergence theorem. It can be implemented anywhere. It can be implemented anywhere. If I implement this on a specifically on a electric flux density vector capital D, then only it is called a Gauss divergence theorem, which is represented by equation number 4. फिर 3 हमने डेराइव की थी, 4 हमने डेराइव की, और 3 और 4 की मदद से हमने एक इक्वेशन डेराइव की, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो वी, which is very popularly known as point form of the Gauss law, differential form of the Gauss law, and it is one of the famous Maxwell's equation, which we will study in detail in the 9th lecture. So del dot d is equals to rho v, ये इक्वेशन नंबर 5 है, हमारा पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है। अब जो D है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, एप्सिलॉन E से। जहां पे हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो अ वेक्टर, बट एप्सिलॉन इज नीदर अ वेक्टर नॉर अ स्केलर, इट इज अ टेंसर। टेंसर मतलब इसको 9 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है 3x3 की मैट्रिसेस से, ठीक है। हमने जब उसको सब्सटीट्यूट की, D की वैल्यू एप्सिलॉन E, we got del dot E is equals to rho v by epsilon, which is none other than the point form differential form of the Gauss law. Then del operator क्या है, basically we have seen del by del x ax plus del by ay plus del by del z az, उसको सब्सटीट्यूट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने प्राप्त किया, which is del v by del x ax plus del v by del ay plus del v by del z az with minus sign. Then this was the equation number 6. We have substituted the definition of E in it. Then del dot minus del v is equals to rho v by epsilon, del dot del v is equals to minus rho v by epsilon, and finally del square v is equals to minus rho v by epsilon, which is very popularly known as Poisson equation or Laplace Poisson equation, in which we are using an operator that is del square operator, and that is known as a Laplacian operation of second order. del की definition मैंने बताई, ये first order differential operator है। डेल स्क्वायर की डेफिनेशन भी मैंने आपको समझाई, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मोस्ट पॉपुलरली नोन एज द लैप्लासियन ऑपरेटर। सो डेल स्क्वायर v by del x square plus del v by del to v by del y square plus del to v by del z square is equal to minus rho v by epsilon. This is the expanded form of Poisson equation. Then what is Laplace equation? If the region is charge free, the region does not have any kind of charge. If the region is charge free, then there is no need to explain about the line charge density or surface charge density or volume charge density. Of course, all will be 0. So we can simply write del square v is equals to 0. And finally, we got the equation del to v by del x square plus del to v by del y square plus del to v by del z square is equals to 0. And this equation is a third three-dimensional partial differential equation of second order, which is difficult to solve because it is not only a second order differential equation but also having three-dimensional variation. तो जब भी हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वन डायमेंशन, विद रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशन निकालते हैं। एज फार एज द गेट सिलेबस इज कंसर्न, तो उसमें आपको लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन वन डायमेंशन में निकालते आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, और उससे फिर हम आप देखेंगे कि कैपेसिटर का एग्जाम्पल लेते हैं, और मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा एक्स या वाई या जेड में से किसी एक एक्सेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो फिर हमें या तो डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा, या तो डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर, या डेल टू वी बाय डेल जेड स्क्वायर मिलेगा। दो बार इंटीग्रेट करेंगे, वोल्टेज की इक्वेशन मिल जाएगी, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फील्ड मिल जाएगी, फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी तो चार्ज मिल जाएगा, चार्ज अपॉन वोल्टेज करने से कैपेसिटेंस मिल जाएगा। सो मेनी थिंग्स वी कैन डिराइव, and all these things are nothing but the application of the Laplace equation, which can be derived through the solution of the Laplace equation. So dear student, it's a very, very important topic. Please prepare this. I have covered this particular lecture and I have revised these particular slides also. Okay, so if you want to score good marks in GATE, so numerical aptitude अपना strong करिए and अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने में जितना आप काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।